Good morning, students. Today we are going to learn about Chapter 11 Biotechnology Principles and Processes. So, in this chapter, this is the chapter 11 of NCERT, CBSE Class 12th. So, I want to share the first page of the chapter. This is the unit as well. So, I want to share with you the how the chapter starts in the NCERT. You can see this is the unit 9 biotechnology. It's written ever since Rene Descartes, the French philosopher, mathematician, and biologist of 17th century. All human knowledge, especially natural sciences, were directed to develop technologies which add to the creature comforts of human lives as also value to human life. So René Descartes, after the time of this French philosopher, the mathematics and biologists both were trying that they should invent somehow such technology, such techniques that more comfort can come in human life and the value of the human life increase. So the whole approach to understanding of natural phenomena become anthropocentric, means the man development driven. So natural phenomena, study of natural phenomena was aimed at developing the mankind. Physics and chemistry gave rise to engineering, technologies, and industries which all worked for human comfort and welfare. Physics and chemistry were the streams which were giving rise to the new technologies and were comforting the human. The major utility of biological world is as a source of food and biotechnology, the 20th century offshoot of modern biology, changed our life as its product, brought qualitative improvement in health and food production. So, the biotechnology or biology was just used as food and was used to get the products which we use in our general daily life and so the basic principle underlying biotechnological processes and some application are highlighted and discussed in this unit. So biotechnology was also used later on. So now this is Herbert Boyer. This is the scientist. So Herbert Boyer was born in 1936 and brought up in corner of Western Pennsylvania. And there the railroads and mines were destiny of most young men. So this scientist was born and brought up in Pennsylvania, and there at that place, most of the people want to work in the railroads and mines. He completed graduate work at the University of Pittsburgh and in 1963 followed by 3 years of postgraduate study at Yale. So he did its postgraduate from Yale University. And in 1966, Boyer took an assistant professorship at the University of California at San Francisco. So in 1966, he did a professorship at the California at San Francisco. And by 1969, he performed study on a couple of restriction enzymes of the E. coli bacteria. So he was performing study on enzymes of E. coli bacterium. Especially having these enzymes were having a special property. They have the capability of cutting the DNA strand, as it's written in the next line, in a particular fashion, which left what has become known as sticky ends on the strands. So these enzymes cut the given DNA molecule in such a manner that they produce or they have sticky end at their endpoints.
So these clipped ends made pasting together pieces of DNA a precise exercise. So resulting DNA can be easily pasted together if we are cutting two types or two different DNA from the same restriction enzyme. We are going to have same types of ends at both the DNA segments. So these segments having complementary ends or cohesive ends or sticky ends on both their side or end point, they can be ligated together to make a particular DNA molecule, single molecule having pasted these two things together. This discovery in turn led to a rich and rewarding conversation in Hawaii with the Stanford scientist named Stanley Cohen. So this discovery was in turn led to a rewarding conversation. He talked about the restriction enzyme with Stanley Cohen. Cohen had been studying small ringlets of the DNA called plasmids. So Cohen was interested in studying the plasmids. The plasmids are the extra chromosomal DNA molecule present in the bacterium, and then which are found in the cytoplasm of the bacterium. And there, Cohen has developed a method of removing these plasmids from the cells and then reinserting them in other cells. So he was doing a work in which he removed the DNA plasmids from one bacterium, then put these in another cell, combining both the processes of cutting by the restriction enzymes and making a new ligated DNA, and then that particular cut is made if made in the plasmid, and then transferring these DNA back into the newly formed DNA back into the cells. Both Hubbard, Boyer, and Cohen, they both combine the segments of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cells, which could then act as manufacturing plants for specific proteins. So they designed the particular type of DNA, and then they transferred those DNA, transformed the bacterial cells with those DNA, and then these bacterial cells can produce particular specific proteins. This breakthrough was the basis upon which the discipline of biotechnology was formed. And on this basis only, the biotechnology was found. So Herbert Boyer and Cohen was the first one to discover the recombinant DNA. So now the principles of biotechnology, the first paragraph. Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organism to produce products and processes useful to human. So it is a simple definition, it is a technique of in which the living organisms or their enzymes or the enzyme extracted from the organisms are used, or the products formed of the from the organic products are used, and processes that are useful for humans somehow. So that all is dealt with the biotechnology. And we can think, it's written here, that micro-mediated processes were very old processes, or very, we can say, in earlier times, we are using household products which are fermented. So, however, this is used in a restricted sense today to refer to such processes which use genetically modified organisms. So, in now, in the latest, we can say times, we refer to biotechnology with only those processes, restricted to those processes which use genetically modified organisms. And genetically modified organisms, when used on a larger scale, this known as biotechnology. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology.
For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing the genes and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene. These all are the parts of biotechnology. So, in vitro fertilization, where the artificially in the test tube, the zygote is formed, that process also comes under the biotechnology. Now, the definition given by the European Federation of Biotechnology, EFP. So that institute gave the definition that biotechnology is that branch or that science that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. And the definition is as follows: that integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for products and services. So, the technology where the natural science is integrated and organisms, cells, their parts are and molecular analogs are used for the products and services. So that is called biotechnology, that integration of natural science and organisms and their parts and their molecular analog for products and services is known as biotechnology. Principles of biotechnology. Now, coming to the next topic, principles. Among the biotechnology, there are two core techniques that enable the birth of modern biotechnology. The first one is genetic engineering, techniques to alter the chemistry of genetic material, DNA and RNA. So this is the first principle, which involves somehow modifying the genetic material, somehow altering, changing the sequence in a desired manner, in a useful way. Whenever the DNA is being altered or RNA is being altered, that comes under genetic engineering. Now, the continuation of that, to introduce these modified DNA into host organism and thus change the phenotype of the host organism. So, this is there. So now the genetic engineering result in the modification of somehow of DNA, and then these DNA and RNA to be introduced these into the host organism. These modified DNA molecules are introduced into host organism and thus change the phenotype of host organism. This will result in the change of the phenotype of host organism. Now, second code technique is maintenance of sterile microbial contamination-free ambience in chemical engineering processes that enable growth of only the desired microbes, eukaryotic cells in large quantities, and for manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, and enzymes. So, the organism which is modified now, or host organism, that organisms need a very sterile, contamination free equipment. So that maintenance of that sterile environment, ambience, that is not contaminated with any other organism, but in that instrument, if we can only grow our own desirable organisms, that means the chemical engineering. And this is the second technique. Means पहली टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाया है अपनी मर्जी का, अपनी यूजफुल जीन जो इसके अंदर है, और फिर दूसरी कोर टेक्निक जो कि मेंटेनेंस है स्टेराइल कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट का, कि अब हम उस डीएनए मॉलिक्यूल को हम पहली ही टेक्निक में होस्ट में भी डाल चुके हैं. इंट्रोड्यूस देखो लिखा है, इंट्रोड्यूस इनटू these into host. So मॉडिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को जेनेटिक इंजीनियरिंग में बना के, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं, उस डीएनए को बनाकर हम होस्ट सेल में डाल देते हैं. अब हमें इस
होस्ट सेल को ग्रो कराना होता है. वी हैव टू ग्रो इन लार्जर अमाउंट. और उसको ग्रो कराने के लिए हमें बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी खराबी उस मशीन में ना हो, ऐसी मशीन डिजाइन करनी पड़ती है. और जिसके अंदर कोई और ऑर्गेनिज्म भी ना हो, सिर्फ हम जो चाहते हैं वो जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स हैं वो उसमें ग्रो हो सके. तो ऐसा हम एक इन्वायरमेंट जब क्रिएट करते हैं तो उसको केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं. एंड इसमें लार्ज अमाउंट में वो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है और प्रोडक्ट बनाता है. बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स, ये सब. अब हम आगे पढ़ रहे हैं. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. प्रोबेबली हमने ये समझा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं. तो कॉन्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी का इसी से आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन ज्यादा होते हैं. तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर पर एक प्रॉब्लम था कि हाइब्रिडाइजेशन में जहां पर हम दो सिलेक्टेड पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं और फिर एक नया हाइब्रिड बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है कि हमें उसमें पहले पेरेंट्स भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखकर, फिर उसके बाद उनकी क्रॉस कराने पड़ेंगे, उनके प्रोजेनीज को भी में से भी सबसे बेस्ट जो होगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर उसकी भी कई बार उसकी प्योरिटी चेक करनी पड़ेगी. देन उसको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वेदर दिस न्यू हाइब्रिड कैन बी, हम इसको नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करा सकते हैं कि नहीं, और तब जाके वो एज अ न्यू वेराइटी डेवलप होकर और तब वो मार्केट में आ सकता है. तो इस वजह से ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है. तो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग की को इंक्लूड करती है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया जाता है, एक नया तरीके का डीएनए बना लिया जाता है, जिसमें जीन जो पर्टिकुलर हमारी यूजफुल जीन है वही वो उसके अंदर होती है. और डिजायरेबल अनडिजायरेबल जीन जुड़ने का कोई चांस नहीं होता. और यही जीन जो यूजफुल होती है वो कोई भी जीन हो सकती है, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक बनाने की जीन, या फिर हार्मोन बनाने की जीन, जैसे इंसुलिन बनता है आजकल, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन, या फिर कोई वैक्सीन बनाने की जीन हो सकती है, जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढी जा रही है. तो ऐसे कुछ डिजायरेबल डीएनए हो सकते हैं जिसको हमने वेक्टर में डाला है और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है. और अब इसका नंबर हम बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं जो जीन क्लोनिंग करके. एंड देन इसको हम एक जीन ट्रांसफर करके हमने होस्ट में जीन को ट्रांसफर कर दी है. तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम दूर हो जाती है, इसकी वजह से लिमिटेशन दूर हो जाती है कि हमको आइसोलेट करना है. एंड कि ये लिमिटेशन दूर हो जाती है, टाइम की लिमिटेशन दूर हो जाती है कि जैसे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त बहुत टाइम लग रहा है हमको, और उसमें एक चांस ये भी है कि अनडिजायरेबल जीन भी जुड़ सकती हैं. तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमने इसमें से खत्म कर दी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देता है. एंड अब हम आराम से आइसोलेट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वन ऑफ द सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म. तो ये एक बेनिफिट है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट है. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या कोई भी पीस ऑफ डीएनए जो किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म में डाला गया है वो वहां जाकर उसका क्या होगा, क्या वो उस ऑर्गेनिज्म में जाकर मल्टीप्लाई होने लगेगा, क्या नहीं मल्टीप्लाई होगा. बट जब वो इंटीग्रेट होगा जीनोम में, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म में जाल डाल रहे हैं फॉरेन जीन को, अगर वो किसी भी तरह से फॉरेन जीन जाकर होस्ट के डीएनए में जुड़ जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और वो फिर नए सेल्स में भी जा सकती है, इनहेरिट हो सकती है, क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए अब क्रोमोसोम का पार्ट बन गया है और क्रोमोसोम के अंदर एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की. तो इस वजह से वो डीएनए मॉलिक्यूल जो होस्ट के डीएनए मॉलिक्यूल में इंटीग्रेटेड है वो मल्टीप्लाई हो सकता है. इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और क्रोमोसोम में हम ये भी जानते हैं कि वहां पर एक स्पेसिफिक रीजन होता है रेप्लिकेशन का, जिसे ओरी रीजन कहते हैं. इट्स कॉल्ड ओरी
और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये एक ऐसा रीजन होता है जो इनिशिएट कराता है रेप्लिकेशन को। यहाँ पर इसीलिए मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऐसा एलियन पीस ऑफ डीएनए जो ओरी क्रोमो रीजन के पास में जुड़ा हुआ है, वो रेप्लिकेट होना कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी, वो ऑब्लिगेट मैनर में इट विल बी रेप्लिकेटेड। तो इसी वजह से एक एलियन डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से लिंक किया जाता है। दिस एलियन डीएनए कैन replicate and multiply itself in host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copy of any template. और इस प्रोसेस को क्लोनिंग भी कह सकते हैं, या फिर मल्टीपल कॉपी बनाना किसी भी टेम्पलेट डीएनए की। अब हम फोकस करते हैं फर्स्ट एग्जांपल जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनाया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कोहन और बोयर ने सबसे पहले एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। तो वो कैसे बना था वो हमको यहाँ पर देखना है। So, the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene in encoding antibiotic resistance with the native plasmid. एक हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लिंक कर रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए से। इस तरह से सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना कि उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऐड करी गई प्लाज्मिड के साथ, उसके साथ अटैच की गई। प्लाज्मिड एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है किसी भी बैक्टीरिया के। एंड यहाँ पर सैल्मोनेला टाइफीमेरियम प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाली गई थी। स्टैनले और कोवर और हर्बर्ट बोयर ने इसको 1972 में किया। इन्होंने आइसोलेट की पहले तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डीएनए मॉलिक्यूल से कट करके, जो कि किस से करी, उसने इकोलाई के डीएनए से निकाली थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और जो कटिंग द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन में वो तभी कर पाए जब वो मॉलिक्यूलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करा, जब उन्होंने, तभी वो और ये तभी ये लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स और एंजाइम्स की मदद से डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर पाए। Molecular scissors say they were able to cut the DNA molecule. The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. और अब कट करने के बाद उस डीएनए मॉलिक्यूल को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल को प्लाज्मिड के डीएनए से जोड़ दिया। प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह काम कर रहा था, जो कि वेक्टर होता है कैरियर, जो कि ट्रांसफर करता है इस उससे अटैच्ड पीस ऑफ डीएनए को किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसफर कर सकता है। यू प्रोबेबली नो दैट मस्कीटो वेक्टर, आपको याद है कि मस्कीटो वेक्टर, इंसेक्ट वेक्टर क्या होते हैं? कुछ पैरासाइट्स को, जैसे प्लाज्मोडियल पैरासाइट्स को मलेरिया के वक्त एनोफिलीज मस्कीटो एक ह्यूमन से दूसरे में ट्रांसफर करती है। इस तरह से प्लाज्मिड भी यहाँ पर वेक्टर की तरह काम करते हैं, जो फॉरेन जीन को एक ऑर्गेनिज्म से की फॉरेन जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। प्लाज्मिड को भी वेक्टर यूज किया जाता है टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए टू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये प्लाज्मिड का यूज हो गया। The linking of antibiotic resistance gene with plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase। और लिंक करना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर से डीएनए लाइगेज नाम की एंजाइम की मदद से हो पाया, जो कि एक्ट करती है ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइंट देयर एंड्स, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के एंड्स पर एक्ट करती है डीएनए लाइगेज, और उनके कट पॉइंट्स एंड को ज्वाइन कर देती है, सील कर देती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर।
दिस मेक्स, और ये एक कॉम्बिनेशन बना लेता है नाउ ये कंप्लीट सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जब इस डीएनए को किसी भी दूसरे बैक्टीरिया में डाला जाता है जो कि क्लोजली रिलेटेड है सैल्मोनेला के, when this DNA is transferred into E. coli, bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host's DNA polymerase and make multiple copies. अगर हम इस प्लाज्मिड को अब E. coli में डाल दें तो E. coli को हम लार्ज नंबर में ग्रो करा सकते हैं। अब E. coli के लिए एक होस्ट सेल हो गया, नया होस्ट सेल हो गया, और इसमें पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज होगी, इस सेल में नेचुरली सारी एंजाइम्स होंगी इसके साइटोप्लाज्म में, तो अब ये मल्टीपल कॉपीज बना सकता है इस डीएनए मॉलिक्यूल की। The ability to multiply copies of antibiotic resistant gene E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene। तो इस प्रोसेस को कि ये नेचुरली अब डीएनए मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग होती जाएगी। हेंस इन्फर, अब हम 3 बेसिक स्टेप्स अब हम समझ सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या यूज हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, कि हमने डिजायरेबल जीन आइडेंटिफाई करी है। ये हमने किया सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, कि जो हमने जीन आइडेंटिफाई करी थी उसे हमने होस्ट में डाल दिया है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, अब होस्ट में इसका मेंटेनेंस हो रखा है कि ये मेंटेन है, होस्ट में मल्टीप्लाई कर रही है, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, और ये डीएनए प्रोजेनीज में भी जा रहा है, जो नए बैक्टीरियाज बन रहे हैं उनमें भी ये मॉडिफाइड डीएनए डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो ये 3 स्टेप होते हैं, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए लार्ज अमाउंट में एम्पलीफाई हो पाता है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी बना पाता है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो उसके कुछ टूल्स हैं। तो वो टूल्स क्या क्या हैं वो हमें देखना है। तो पहला टूल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। Now we know from the foregoing discussions that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished by only if we have key tools। हमारे पास ये key tools होने चाहिए तभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से टूल्स हैं? बस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होनी चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होनी चाहिए, लाइगेजेस होनी चाहिए, वेक्टर्स होने चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इनको कुछ डिटेल में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर हम समझें तो ईयर 1963 में सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करी गई। बैक्टीरिया से ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट कराई गई एंड इकोलाई बैक्टीरिया में से एंजाइम्स को रिलीज कराया। तो 1963 में 2 एंजाइम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थी रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, वो ऐसी एंजाइम्स थी जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रही थी, ई कोलाई में किसी भी बैक्टीरियोफेज को ग्रो नहीं होने दे रही थी, तो इसलिए उनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रख दिया। उनमें से एक एंजाइम मिथाइल ग्रुप्स ऐड करती थी डीएनए में और दूसरी एंजाइम डीएनए को कट करती। द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो दूसरी वाली थी जो कट प्रोड्यूस करती थी उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहा गया, बिकॉज इट इज कटिंग द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को कट कर रही है और इसकी वजह से वो रेस्ट्रिक्ट भी कर रही है ग्रोथ को। तो रेस्ट्रिक्शन फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ इन एंडोन्यूक्लियस फॉर कटिंग द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुई वो हिंड सेकंड थी, जो फंक्शन करती थी एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही वो कट प्रोड्यूस करती थी, जिस डीएनए सीक्वेंस को भी 5 साल बाद फाइंड कर लिया गया। और इट वाज फाउंड दैट हिंद सेकंड हमेशा डीएनए को 6 बेस पेयर के डीएनए मॉलिक्यूल को ही रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक पॉइंट पे कट प्रोड्यूस करती थी। तो दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, इस बेस सीक्वेंस का भी नाम दिया गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे ही कट प्रोड्यूस करेंगी और उन सीक्वेंसेस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाएगा। तो
रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम। जैसे हिंद सेकंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो उसको बोला जाएगा हिंद सेकंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। Beside Hind second, today we know more than 900 restriction enzymes. अब हिंद सेकंड के अलावा आज हम 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जानते हैं और 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में each of which recognize different recognition sequence, जो कि अलग अलग recognition sequences recognize करती हैं। ऐसी enzymes isolate करी जा चुकी हैं। The convention for naming these enzymes, the first letter of the name comes from the genus। जब हम नाम रखते हैं एंजाइम्स का तो पहला जो नाम होता है एंजाइम के पहला लेटर जो होता है वो उस ऑर्गेनिज्म से, जिस ऑर्गेनिज्म से एंजाइम निकल रही है उसी ऑर्गेनिज्म के जीनस का फर्स्ट लेटर होता है। और जैसे हम एंजाइम की बात करें इको R1 तो ई उसमें एशरीचिया जीनस बैक्टीरिया के जीनस के लिए यूज किया है। सेकंड दो लेटर उसके स्पीशीज से आते हैं, जो भी स्पीशीज बैक्टीरिया की है उससे आते हैं। तो इको R1 में CO कोलाई के लिए यूज किया गया है, तो CO और स्मॉल में लिखा जाता है। देन Eco R1 comes from the Escherichia coli RY and R जो उसका स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है और वो R is derived from the name of the strain of the bacteria। क्योंकि बैक्टीरिया के कई स्ट्रेन होते हैं तो R स्ट्रेन से यहाँ पर R लिखा है और रोमन नंबर का लास्ट लेटर 1 रिप्रेजेंट करता है ये कौन से नंबर की एंजाइम थी, ऑर्डर कौन से नंबर पे ये इको लाइन से रिलीज करेगी। तो फर्स्ट नंबर पे जो एंजाइम इकोलाई और R स्ट्रेन से निकाली गई है वो इको R1 है। तो इस तरीके से हम नाम रखते हैं और इस तरीके से हम एंजाइम्स को पहचान सकते हैं। तो ये इनका नोमेनक्लेचर हो गया एंजाइम्स का। इस तरीके से एंजाइम्स का नाम रखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि किस तरीके से द एंजाइम्स प्रोड्यूस द कट, कैसे ये एंजाइम्स कट प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पर डायग्राम है एनसीईआरटी का, वो हमें समझाता है। Restriction enzyme belong to a larger class of the enzymes called nucleases। Restriction enzyme nucleases class of enzymes में आती है। दो तरह की न्यूक्लियसेस होती हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस एंड पॉइंट्स पे कट करती हैं, कॉर्नर्स पे, एंड एंडोन्यूक्लियसेस ऐसी एंजाइम होती हैं जो इनसाइड कट प्रोड्यूस करती हैं डीएनए मॉलिक्यूल में। एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से रिमूव करती है डीएनए के, जबकि एंडोन्यूक्लियस अंदर इनसाइड विद इन द डीएनए अंदर की तरफ कट प्रोड्यूस करती है एंड न्यूक्लियोटाइड्स निकालती है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को डिटेक्ट करके ही कट प्रोड्यूस करती है। Once it find its specific recognition sequence, जब एक particular recognition sequence पहचान लेती है दोनों तरफ, वो दोनों स्ट्रैंड पे डबल हेलिक्स पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सुगर फॉस्फेट बैकबोन तोड़ देती है और उससे डीएनए मॉलिक्यूल कट हो जाता है। और ऐसे सीक्वेंस को जिस सीक्वेंस को पहचानती है उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। This sequence is same if it is read from 5' to 3' and 3' to 5' end of the DNA। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए के वो सीक्वेंस होते हैं जिनको अगर 5' से 3' पढ़ा जाए या 3' स्ट्रैंड से 5' स्ट्रैंड पढ़ा जाए तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड पे अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे वो सीक्वेंस सेम रीड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जब डायग्राम है उसमें समझा रखा है कि वेक्टर डीएनए में जिस सीक्वेंस को इको R1 ने पहचाना है वो है GAATC और फॉरेन डीएनए में भी इको R1 ने सेम ही सीक्वेंस पहचानना है क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पहचानती हैं एंजाइम्स। तो दोनों ने सेम सीक्वेंस पहचाना और G और A के बीच में बोथ स्ट्रैंड्स पे इट प्रोड्यूसेस कट, तो कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस हो गए, with this resulting in the cohesive end or sticky ends। एंड ये स्टिकी एंड्स क्लोज अप्रोच में, अप्रोक्सीमिटी में जब रहेंगे तो दे विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर
So DNA fragment join at sticky end, they will hydrogen bond, and then ligase, with the help of ligase, we can make a recombinant DNA molecule. So ये step of the formation of recombinant DNA molecule भी हो सकते हैं. Three steps. So first, cutting the both the DNA vector and the foreign DNA from the same restriction enzymes. Then making the DNA fragments join at the sticky ends, and then ligating them by the use of ligase. So with this, a DNA molecule is formed called as recombinant DNA molecule. New DNA molecule is formed. अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में एक एग्जांपल से समझा रखा है कि these sequences are same when it's read in same on the two strands 5 dash to 3 dash direction. This is also true if the read in 3 dash to 5 dash direction. So G double A double T C 5 dash to 3 dash हो गया, and then next strand में भी 5 dash to 3 dash G double A double T C. So this type of sequences is known as palindromic sequences. Restriction enzyme cut the DNA strand of the DNA a little away from the center of the palindromic size, but between the same two bases, दोनों palindromic sequences में वो same base के बीच में cut produce करती है opposite strand पे. This leave the single stranded portion at the ends. इस वजह से cohesive end produce होते हैं. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand, और overhanging stretches होते हैं sticky ends पे हर स्ट्रैंड में. सो बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर. द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डी एंजाइम डीएनए लाइगेज. और इन स्टिकीनेस की वजह से डीएनए लाइगेज बहुत इजीली उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सील करके एक न्यू आरडीएनए बना पाती है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड की जाती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में recombinant DNA molecule बनाने के लिए, which are composed of DNA from different sources. ये एक ऐसा DNA molecule होता है recombinant DNA molecule जो कि DNA जिसके अंदर DNA दो different genomes का DNA मैच पेस्ट किया होता है और joined होता है. When cut by the same restriction enzyme, resultant DNA fragments and the same kind of sticky ends. तो जब same restriction enzyme से कट किया है तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल पे सेम स्टिकी एंड्स होते हैं. दिस कैन बी जॉइन टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज, और इसको डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया जाता है. यहाँ पे एक और डायग्राम दे रखा है जो स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में कह सकते हैं. फॉरेन डीएनए इज इन शोन इन ब्लू कलर, रेड is of vector DNA plasmid. Then both the DNA molecules are fragmented by or cut by the same restriction enzymes at a specific point, and then both molecules are joined to make a recombinant DNA molecule. And then the next step is transforming the host cell. So transformation is done. The naked DNA is taken inside the bacterial cell, that is known as transformation, and then the transformed host is multiplied, and therefore the plasmid DNA is also transferred into daughter cells. So this is the diagrammatic representation of recombinant DNA technology. So diagram is also important. तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसी होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करके और उसमें मल्टीप्लाई या जीन क्लोन करी जा सकती है. सो आज हम यहीं तक समझेंगे. ये टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन किया हमने बायोटेक्नोलॉजी का. देन हमने कॉन्सेप्ट समझा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया है बायोटेक्नोलॉजी का. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बना है, 3 स्टेप क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के. देन टूल्स में हमने पहला टूल डिस्कस किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब हम दूसरा टूल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से किसी डीएनए मॉलिक्यूल को कट करते हैं तो उसके बाद हमें
वो फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो भी हमें डिजायरेबल जीन चाहिए उन्हें आइसोलेट भी करना होता है। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे हमें आइसोलेशन में हेल्प करता है। So I hope you like the lecture, you understand the things, and you can comment on the video, or you can give your doubts with the comments. I will try to solve them, and like and subscribe my channel.